Am I audible? Yes, ma'am. Good Good morning. morning. Bones of the vertebral column, different bones of lumbar region, sacrum, coccygeal region. In today class, we will continue with the bones of the hind limb. Forelimb is divided into how much segment? Name the segments of forelimb. Yes. Shoulder, arm, forearm, and manus. So likewise, the hind limb is also divided into regions, and regions are hip region, thigh region, leg region, and pes region. Hip, thigh, leg, and pes region. And pes region is further divided into tarsal, tarsus, metatarsal, and phalanges. Clear? So the shoulder region of forelimb is resemble with the hip region. The arm region resemble with the thigh region. The forearm region resemble with the leg region, and the manus region resemble with the pes region of hind limb. Clear? As we see, in case of this shoulder region, we find only the scapula, while in case of hip region, we find the os coxae, which form the pelvic girdle. Okay, pelvic girdle and os coxae. And then in case of thigh region, we find the femur. In case of leg region, we find the tibia fibula. And in the pes region, we find the tarsal, metatarsal, and phalanges. Clear? So today we will discuss about the bones of the pelvic girdle or the bones of the hip region. This is the bone of one side of pelvic girdle, known as os coxae or hip bone, and as such it is the largest flat bone of the body. Okay? It is the largest flat bone of the body, and it consists of three parts: ilium, ischium, and pubis. Okay? Its arrangement is like this: ilium, ischium, and pubis. क्लियर है? तीन बोन समझ में आई? सो अगर हम जॉइंट स्ट्रक्चर में देखें तो दिस इज होल पेल्विक गर्डल ऑफ द एनिमल. ठीक है? एंड दिस area or this space is pelvic cavity. Okay? This is the bone of ilium, os coxae का ilium. This portion is ischium, and this one is pubis. Pubis. The bone os coxae is arranged in a craniocaudal manner. ठीक है? तो ilium will be the cranial side. बोन जो है वो कुछ इस तरीके से अरेंज होगी. ये दिख रही है बोन. ठीक है? So ilium forms the later part of the pelvic cavity, lateral boundary, and pubis is situated at a cranial side, and ischium is caudally and form the floor of the
maximum floor of the pelvic cavity. Okay. Bone is arranged in this manner in the body. Ilium, ischium, and pubis. So when we talk about the ilium, the first bone is ilium. It extends from this portion to acetabulum. This cavity is known as acetabulum. Clear? This cavity is known as acetabulum, where all three bones get united. Okay, so ilium, it extends from the wing to the acetabulum. Okay, and it is the largest part of the three bones or three parts of os coxae. Largest is ilium. It is roughly triangular in shape. It is irregularly triangular in shape. ठीक है, ऊपर जो है विंग एरिया हमको क्लियरली ट्रायंगुलर समझ में आ रहा है एंड डिस्टल पार्ट में इट बिकम समवॉट राउंडेड एंड दिस पोर्शन इज नोन एज शेफ्ट. ठीक है, ilium is roughly triangular in shape and the proximal part is known somewhat wing shape and the distal part is known as shaft. Clear? Wing and तीन बॉर्डर समझ में आए? Yes, ma'am. Yes. एंड थ्री एंगल्स. ट्रायंगल है, ट्रायंगल शेप बोन है तो तीन एंगल मिलेंगे. इट हैज थ्री एंगल्स. ठीक है, क्रेनियोमीडियल और एंटीरियोमीडियल, क्रेनियोलेटरल और एंटीरियोलेटरल. मीडियल साइड में है, आगे की तरफ है तो क्रेनियोमीडियल, पीछे की तरफ है तो लेटरल साइड में है और आगे की तरफ है तो क्रेनियोलेटरल. ठीक है, एंड डिस्टल एंगल इज नोन एज एस्टाबुलर एंगल बिकॉज इट helps to insertion in the formation of the acetabulum. That's why distal angle or acetabular angle. Clear? ठीक ठीक है. नाउ कम टू द सरफेसेस. अब सरफेस के बारे में बात करते हैं. सो ऑन द ग्लूटियल सरफेस, ये ग्लूटियल सरफेस दिख रही है? पूरा व्यू नहीं आ रहा है मैम, मैं बोर्ड को. मैम कैमरा पीछे, हाँ आप सही है. ठीक है ना. दिस वन इज ग्लूटियल सरफेस, स्मूथ सरफेस, वाइड एंड कॉनकेव इन फ्रंट. यहाँ पे कॉनकेविटी दिख रही है, वाइड कॉनकेव इन फ्रंट एंड स्लाइटली कॉन्वेक्स बिहाइंड. पीछे की तरफ थोड़ा सा कॉन्वेक्स है और आगे की तरफ देखोगे तो स्लाइटली कॉनकेविटी, ये डिप्रेशन दिख रहा है. ठीक है. A gluteal line is present over the surface. A gluteal line is present which is parallel to the lateral border and join the ischiatic spine. This structure is ischiatic spine. Join the ischiatic spine with the tubercocce or anterior-lateral angle. This angle is anterior-lateral angle. Anterior-medial angle is also known as tubersacral and anterior-lateral angle is known as tubercocce.
ठीक है. So on the gluteal surface a fented line is present which extend from the tubercocce to the ischiatic spine. This portion is ischiatic spine. ठीक है. ये raised area है. What is the definition of spine? What is the definition of spine? Cylinder pointed projection. Pointed projection. Something else? Cylinder pointed projection. Cylinder pointed projection. स्कैपुलर स्पाइन कैसा होता है? पॉइंटेड प्रोजेक्शन. ठीक है ना. तो पॉइंटेड प्रोजेक्शन जो हमें क्लियरली दिखता है. सो लाइकवाइज हियर इज द ischiatic spine. ये ischium bone है. Ischiatic spine is present and from the tubercocce, lateral angle of the ilium, a fented line is run over the gluteal surface and it reaches to the ischiatic spine as gluteal line, and this surface is known as gluteal surface because it gives the at this part heavy attachment of gluteal muscle is present. इंजेक्शन देते हुए देखा है एनिमल में? एनिमल्स में कभी इंजेक्शन लगते हुए देखा है? कहाँ लगाते हैं? हिप रीजन में लगाते हैं. ठीक है ना. तो ये रीजन जो है हिप रीजन में इंजेक्शन लगाते हैं एंड दिस पोर्शन इज very much studied with the gluteal muscle. Well developed gluteal muscles are present in this area. Deep gluteal, middle gluteus and superficial gluteus. In case of cattle, absent, and this portion, this gluteal muscle area is used for the intramuscular injection in case of animal. ठीक है. तो ये जो gluteal surface है, it provides the attachment for the gluteal muscle. Clear? So this is about the gluteal surface. The next surface is pelvic surface. ये है pelvic surface. Pelvic surface में कुछ डिफरेंस समझ कुछ डिफरेंस दिख रहा है pelvic surface में? एक ये रीजन दिख रहा है. कौन कैविटी कर रही है? डिप्रेशन है बीच में स्पाइन दिख रहा है. कहाँ है डिप्रेशन? इन दोनों एरिया के बीच में एक रेज्ड रफ लाइन दिख रही है. ठीक है. इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये रीजन थोड़ा नीचे है, ये रीजन थोड़ा ऊपर है. डिप्रेशन ये है, ये कॉन्केविटी है. ठीक है ना. यहाँ डिप्रेशन है, यहाँ डिप्रेशन नहीं है. यहाँ दोनों का लेवल अलग अलग दिख रहा है. डिप्रेशन ऐसा दिखेगा क्या? वो साइज ठीक है ना. डिप्रेशन हमने कॉन्केविटी यहाँ देखी ग्लूटियल सरफेस पे, यहाँ पे डिप्रेशन था. एट दिस साइड डिप्रेशन इज नॉट प्रेजेंट. एट दिस साइड यू कैन सी द टू एरिया सेपरेटेड बाय अ रिज लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. एक ट्रायंगुलर है, रफ है, एक स्मूथ है, समवॉट क्वाड्रेंगुलर इन शेप है. बहुत क्लियरली क्वाड्रेंगुलर नहीं बोल सकते, बट वन पार्ट इज ट्रायंगुलर, अनदर पार्ट इज क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. दिस पोर्शन, दिस रफ ट्रायंगुलर पोर्शन गिव अटैचमेंट टू द सेक्रम. जो अभी हम देख रहे थे अटैच्ड पार्ट था सेक्रम का, दैट पोर्शन इज अटैच्ड हियर. सेक्रम का कौन सा पार्ट अटैच होता है? मीडियल साइड या लेटरल साइड? विंग का लेटरल साइड. लेटरल साइड. ठीक है ना. तो लेटरल साइड क्यों? क्योंकि जैसे सेक्रम यहाँ आया एंड दिस पोर्शन इज अटैच लाइक दिस. तो दिस इज मीडियल पोर्शन एंड दिस वन इज लेटरल पोर्शन. और अटैचमेंट इस तरीके से इनवर्ट अटैचमेंट है, बाहर से नहीं है. बाहर से होता तो मीडियल साइड अटैच होता,
अंदर की तरफ से है, इसलिए लेटरल साइड अटैच्ड होता है, ठीक है ना। सो दिस triangular portion, this rough triangular portion is attached by the give attachment to the sacrum, or it forms a joint with the sacrum, ठीक है। And on the lateral part or on the quadrilateral side, iliacus muscle get attached. At this portion, iliacus muscle is attached, ठीक है। When there is attachment of the sacrum, here a line is present. This line is known as iliopactineal line. Below the attachment of the sacrum, a line is run over the surface known as iliopactineal line. Iliopactineal line, and below the middle of the iliopactineal line, there is presence of tubercle known as Sos tubercle. Iliopactineal line and Sos tubercle. Okay. Here you can see this is the attachment of the sacrum. Okay. Below this, here a line is running which reaches to the distally up to the pubis. Okay. And at below the middle of this line, there is a presence of tuberculated structure that known as Sos tubercle. Sos tubercle. ठीक है। And on the lateral side, you will find the attachment of the iliacus muscle. Clear? Okay. Now come to the borders. This is about the surface, gluteal line, gluteus muscle, pelvic surface, attachment of sacrum, iliacus muscle का insertion, iliopactineal line, and Sos tubercle. Sos tubercle are important landmark for the define the topographical position of the ovary. जब हम visceral organ पढ़ेंगे तो हमें topographical position बताने के लिए पहले से landmark पता होने चाहिए. So here you can see the presence of Sos tubercle, which is the landmark for the position of ovary. Clear? मैम 100 tubercle एक बार बता दीजिए। Sos tubercle. At the below the middle of the iliopactineal line, there is a presence of tuberculated structure that known as Sos tubercle. जैसे हमने वहां पे देखा था टीरस ट्यूबरोसिटी, टीरस ट्यूबरकल देखे थे, यस मैम, है ना। उसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर यहाँ मिलता है एंड इट इज नेम्ड एज Sos tubercle, PSOAS. ठीक है, P is silent in this Sos tubercle. Clear? यस मैम। Okay. Now come to the borders. Anterior border is rough, short, concave. ठीक है, and this anterior border is also defined as crest. ठीक, medial border is also concave. At upper part it is convex and at lower part it is concave. ऊपर की तरफ convex है and distally it become concave, thick and rounded structure. Okay, and it forms the greater ischiatic notch. Notch किसे कहते हैं? What is the notch? Notch slightly depression. हाँ, slightly depression. ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी हमने रेज्ड एरिया की बात की, दैट इज द स्टैटिक स्पाइन. ठीक है, अब इस स्टैटिक स्पाइन के ऊपर की तरफ भी डिप्रेशन दिख रहा है और नीचे की तरफ भी डिप्रेशन दिख रहा है. दिख रहा है? ये रेज्ड एरिया हो गया स्टैटिक स्पाइन. इसके ऊपर की तरफ भी डिप्रेशन है, इसके नीचे की तरफ भी डिप्रेशन है.
दिखाई दे रहा है? दिस पोर्शन इज स्टैटिक स्पाइन, यहां पर डिप्रेशन दिख रहा है और यहां भी डिप्रेशन दिख रहा है, दिख रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना? तो ये ऊपर का डिप्रेशन बड़ा है और नीचे का डिप्रेशन छोटा है Yes. है ना? कंपैरिजन करें तो ऊपर वाला जो डिप्रेशन है वो बड़ा है, नीचे वाला डिप्रेशन जो है वो छोटा है। ठीक, सो ऊपर वाला डिप्रेशन इज नोन एज ग्रेटर स्टैटिक नॉच और नीचे वाले को बोलते हैं लेसर स्टैटिक नॉच। ठीक है, स्टैटिक स्पाइन के ऊपर है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्रेटर स्टैटिक नॉच एंड दिस वन इज लेसर स्टैटिक नॉच। ठीक है, and greater sciatic notch is formed by the lateral border of the medial border of the ischium, ilium, medial border of the ilium. The greater sciatic notch is formed by the medial border of the ilium and lesser sciatic notch is formed by the ischium. ठीक है, समझ में आया ये चीज? ये स्टैटिक स्पाइन है, a raised prominent area, curved area that known as sciatic spine. ठीक, स्टैटिक स्पाइन के ऊपर भी डिप्रेशन है, स्टैटिक स्पाइन के नीचे भी डिप्रेशन है। ठीक है, स्टैटिक स्पाइन के क्रेनियल में भी डिप्रेशन दिखाई दे रहा है और कॉर्डल में भी डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना? ये स्टैटिक स्पाइन दिख रही है, कुछ तो बोलो, हाँ ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. आ रहा है। स्टैटिक स्पाइन और क्रेनियली जो है वो ग्रेटर स्टैटिक स्पाइन है, बड़ी है, और कॉर्डली जो है वो छोटी स्टैटिक स्पाइन दिख रही है। ठीक है, इसलिए दैट्स नेम्ड एज लेसर स्टैटिक स्पाइन। स्टैटिक नॉच स्टैटिक स्पाइन के ऊपर और नीचे है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नेम्ड एज स्टैटिक नॉच। ठीक है, एंड ग्रेटर स्टैटिक नॉच इज फॉर्म बाय द medial border of ilium. ठीक, this one is lateral border and this one is medial border. ठीक, medial border अंदर की तरफ है and it take parts in the formation of greater sciatic notch and continue distally with the sciatic spine. ठीक है, medial border forms the greater sciatic notch and continue distally with the sciatic spine. Here you can see spine, lesser sciatic notch and greater sciatic notch. ठीक है, clear? Yes, ma'am. Okay. The lateral border is concave. ठीक है, and it extends from the tubercocci to the acetabulum. Tubercocci to the acetabulum. Clear? ये पहचानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये कंफ्यूजन हो सकता है कि मीडियल बॉर्डर कौन सा है और लेटरल बॉर्डर कौन सा है। ऐसे बोन रखी हुई है, अब ये नहीं समझ में आ रहा मीडियल साइड कौन सी है, लेटरल साइड कौन सी है, मीडियल बॉर्डर कौन सा होगा, लेटरल बॉर्डर कौन सा होगा। तो बोन जो है वो किस साइड की बोन होगी? अभी कुछ समझ में आ रही है किस साइड की बोन होगी? राइट साइड। राइट साइड की। और कोई? और कोई? राइट ही होगी। राइट होगी। 56 की क्लास में अभी 2 का ओपिनियन आया, राइट होगी। और राइट ही है। और तीन लोग क्लास में से, बाकी लोग नहीं बताएंगे क्या? ये
लेफ्ट साइड की बोन, राइट साइड की नहीं है। क्यों? एक तो जो एस्टाबुलम दिख रहा है बहुत अच्छा सिंपल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि एस्टाबुलम ऑलवेज फेसेस आउटवर्ड। ठीक, अब चूंकि अपने को ये पता नहीं था कि एस्टाबुलम है, एस्टाबुलम फेसेस आउटवर्ड, दैट्स व्हाई इट इज लेफ्ट साइड। कई लोगों को ये होगा, लेकिन अपन ने अभी तक कौन सी बोन पढ़ ली है? इलियम पढ़ ली है ना? यस मैम। है ना? अभी जो मैंने बोन पकड़ी हुई है, अभी जो मैंने पकड़ा हुआ है, तो इसमें ये कौन सी सरफेस है इसकी? pelvic, pelvic surface. pelvic, And this surface is gluteal, Gluteal. क्या बोला मैंने? pelvic surface is always faces pelvic surface किस तरफ फेस करेगी? inward, इनवर्ड, ठीक है ना? एंटीरियो इनवर्ड, आगे की तरफ और अंदर की तरफ, ठीक है ना? अगर ये बोन मेरे इस हाथ में है, इज इट पॉसिबल दैट pelvic surface faces inward? बोन मेरे राइट हैंड में नो मैम, नो मैम, इज इट पॉसिबल कि इट फेसेस टुवर्ड्स द इनवर्ड साइड? नो मैम। नहीं है ना पॉसिबल। तो जब अपन इसको लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे तब इट क्रेनियो इनवर्ड साइड फेस करेगी, क्योंकि बोन की डायरेक्शन ये होती है कि इलियम इज क्रेनियली फेसेस cranially and its pelvic surface is faces towards the pelvic cavity, ठीक है, और towards the medial side, and gluteal surface faces towards the lateral side. ठीक, slightly twisted appearance है तो बहुत clearly नहीं है वो होता, लेकिन जब हम इसको लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली its pelvic surface faces inward, gluteal surface faces outward, its medial border form the greater ischiatic notch. ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था कि medial border forms the greater ischiatic notch. इस हाथ में पकड़ेंगे तो is it possible this one is medial border? अगर इसको राइट साइड में पकड़ेंगे तो ये पॉसिबल है कि ये मीडियल बॉर्डर बनाएगा? नो मैम। नहीं ना। ठीक, तो ये जो फीचर्स हम पढ़ रहे हैं इसको हम अप्लाई भी कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमने बस क्लास के लिए क्लास कर ली और हो गया, हम इनको अप्लाई भी कर सकें। हमसे अगर कोई आगे पूछे, बाद में बात पूछे, तो हम उस चीज को बता सकें। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, समझना भी है चीजों को। मैम एक डाउट है। हाँ मैम अगर इसको हम इसी एस्पेक्ट में हम अगर राइट हैंड से पकड़ते हैं तो ये मैम मीडियली आता है। क्या मीडियली आता है? मीडियल की डेफिनेशन क्या होती है? मैम अगर हम आपके सामने बैठे हैं और हम अपने राइट हैंड से इस बोन को पकड़ते हैं ना, हाँ, तो ये राइट हैंड की बोन बनती है और उसमें ये जो एक्चुअली मैम हमने जो आंसर दिया था ना वो हमारी रिस्पेक्ट में दिया था, आपके रिस्पेक्ट में नहीं दिया था। नहीं, तब भी नहीं है, तब भी नहीं है। तुम्हारी साइड से भी अगर पकड़ोगे ये आएगी ना, तुम्हारा राइट साइड कौन सा आएगा? इफ एनिमल फेसेस दिस साइड, यही बोलना चाह रहे हो ना? यस मैम। ठीक, तो राइट हैंड किस तरफ है? किस तरफ है राइट हैंड? ये वाला साइड होगा ना राइट हैंड। यस मैम। And how it is possible that the acetabulum is faces outward? Is it possible? Is it possible that acetabulum faces outward? ये मेरा, ये जो है एनिमल का हेड है, मान लिया, जो अपनी तरफ से तुम लोग अपने साइड से बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो मान लिया तब भी ये राइट साइड की नहीं होगी वो। एक्चुअली मैम जब मतलब जैसे इसको इमेजिन किया था, मतलब कैटल्स में इमेजिन किया था जो ऊपर कॉन्वेक्सिटी है, इसको थोड़ा सा ऐसा माना था कि वो राइट हैंड पे है, तो कॉन्वेक्सिटी अपर कॉन्वेक्सिटी है जो। तो बोन हम चाहे किसी भी साइड में, आइदर फ्रॉम योर साइड, आइदर फ्रॉम माय और फ्रॉम माय साइड, हम किसी भी साइड से बोन को पकड़ के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, इट ऑलवेज बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर साइड ऑफ दैट एनिमल, और दैट मतलब ये साइड जो है वो एनिमल टू एनिमल वेरी नहीं करेगा कि मैंने पकड़ा इसलिए ये लेफ्ट हैंड की हो गई, और किसी स्टूडेंट ने पकड़ा तो ये राइट साइड की हो गई, और किसी ने पकड़ा तो ये पीछे की हो गई, और किसी ने पकड़ा तो ये आगे की हो गई। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना,
बोन जो है वो जिस साइड की है वो उसी साइड को डिपिक्ट करेगी, उसी साइड को एक्सप्लेन करेगी, उसी साइड को बताएगी। ये हो सकता है कि अभी क्योंकि हम वर्चुअली इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इतना अच्छे से साइड नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन जो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझ में आ गए तो ठीक है, जब हम बोन देखेंगे तब हम उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो किस साइड की है। ठीक है ना? साइड की लग रही है अभी भी। मैं अभी राइट हैंड में ही पकड़े हूँ। एनिमल को किस तरफ फेस करके मान रहे हो? बैकवर्ड, मतलब पीछे से face हम करके। साइड कब बताते हैं? हम साइड के लिए क्या करते हैं? साइड बताने के लिए हम साइड बताने के लिए क्या करेंगे? अगर किसी भी बोन को हमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और हमें उसकी साइड बतानी है तो व्हाट वी सपोज टू? बोन जब हम अपने हाथ में पकड़ते हैं, एट दैट टाइम वी सपोज दैट द फेस ऑफ द एनिमल इज इन द डायरेक्शन ऑफ फेस ऑफ अवरसेल्फ। मतलब जिस साइड में हमारा फेस है उसी साइड में एनिमल का फेस है। ये एक वर्चुअल कंसेप्ट होता है जब बोन हमारे हाथ में होती है। ठीक है ना? ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है कि मेरा फेस जो है वो अपोजिट टू द बोर्ड है, तो एनिमल का फेस भी अपोजिट टू द बोर्ड होगा। क्लियर? क्लियर? यस मैम। ठीक है। अगर यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द बोर्ड, अभी वहां से दिख रहा होगा कि बोर्ड सामने है, यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द बोर्ड, देन एनिमल्स फेस इज ऑल्सो टुवर्ड्स द बोर्ड। क्लियर? यस मैम। ठीक। अब एनिमल का फेस टुवर्ड्स द बोर्ड है और हमने बोन मान लो उस तरफ से पकड़ी है। ठीक। तो ये साइड जो जिस साइड अभी बोन दिख रही है दैट इज रिस्पेक्टिव साइड्स ऑफ योर लेफ्ट साइड। यस मैम। है ना? क्योंकि एनिमल का फेस यहाँ है, टुवर्ड्स द बोर्ड है, ये बोन आपने अपने हाथ में पकड़ी है, तो आपका जो हाथ आ रहा होगा वो इस तरफ लेफ्ट हैंड आ रहा होगा। यस मैम। यस मैम। क्यों यादराम? यस मैम। है ना? इतना समझ में आया ना? If you are facing towards the board, your face is towards the board, animal is supposed to be facing towards the board, and bone is in your hand, then this side is your left side. यस मैम। Clear? So, your left side, the pelvic face surface is faces inward, the acetabulum is faces outward, the lateral angle is faces towards the lateral side, and the medial is faces towards the medial side. From your left side, क्लियर ना? यस मैम। ठीक। अगर इसी बोन को इस हाथ में पकड़ा जाए टुवर्ड्स योर राइट साइड, ठीक है, एनिमल इज फेसिंग टुवर्ड्स द बोर्ड एंड दिस इज योर राइट साइड, दिस हैंड इज योर राइट साइड। यस मैम। ठीक है ना? जो जो साइड में अभी मेरे बोन है वो आपका राइट साइड है। यस मैम। यस मैम। है या नहीं है? किसी को डाउट तो नहीं है? है ना? दिस इज योर राइट साइड। यस मैम। ठीक। So this is your right side, and if you hold the bone in your right hand, then acetabulum is facing inward. यस मैम। ठीक। Pelvic cavity is facing outward. यस मैम। So this bone can't belongs to the right side. यस। ठीक। तो चाहे ये मेरी साइड से देखा जाए चाहे ये तो आप लोगों की साइड से देखा जाए, this belongs is always this bone is belongs to always to the left side. Clear? आपको बोन को बोन के ओरिएंटेशन में ही पकड़ना होगा। ठीक है? आप ये बोलोगे कि मैडम ने तो ऐसे पकड़ लिया, मैडम ऐसे भी पकड़ सकती थी,
जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तब मैं ऐसे पकड़े हुए थी बोन को, है ना। ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि मैडम ने हम लोग को बताने के लिए बोन को ऐसे पकड़ लिया, मैडम जब बता रही थी तब ऐसे पकड़े हुए थी। ये कंफ्यूजन रेज हुआ कि नहीं हुआ दिमाग में? यस मैम, समझ में आ गया। डिफरेंट एनिमल्स हमारी तरफ फेस कर रहा है। नहीं, ये तो जब मैं बता रही हूँ दैट टाइम एनिमल इज फेसिंग टुवर्ड्स यू। जब आप अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, एनिमल इज फेसिंग टुवर्ड्स द बोर्ड, तब मैंने बोन को ऐसे पकड़ा हुआ है। व्हाई आई कीप इट दिस बोन इन दिस मैनर, व्हाई डोंट इन दिस मैनर? एनिमल का फेस बोर्ड की साइड है, तब मैंने बोन को ऐसे क्यों नहीं पकड़ा है? मैम क्योंकि जब बोर्ड की तरफ होगा उसका फेस, तो वो आर्टिकुलेशन एरिया है विंग्स वाला, वो मीडियल साइड होगा। नहीं, अभी पिक नहीं किया। वो जो पॉइंट है, वो जो मैं बताना चाह रही हूँ, वो क्या बताना चाह रही हूँ, दिस बोन जब हमने इलियम पढ़ा, द पार्ट ऑफ द ऑस्कॉक से इलियम पढ़ा, एट दैट टाइम वी रीड दैट इलियम इज फेसेस cranially. What we read? Ilium is faces cranially. ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस मैम। ठीक है, जब बोर्ड इस तरफ है तो क्रेनियल साइड इस तरफ होगा ना? हाँ मैम। जब बोर्ड इस तरफ है तो क्रेनियल साइड इस तरफ होगा, और अगर मैंने बोन को इस तरह से पकड़ा तो दैट मीन्स कि इट इज फेसेस कॉर्डली। यस मैम। है ना? That's why I keep the bone in this manner. जब एनिमल का फेस टुवर्ड्स द बोर्ड है, that time I keep the bone in this manner because the pelvic cavity, the pelvic surface of the ilium is faces craniomedially. यस मैम। है ना? Craniomedially. That's why I keep the bone in this manner and it never belongs to the right side of you. हम समझ में आ गया। आया समझ में? यस मैम। ठीक, तो बोन किस डायरेक्शन में है, किस ओरिएंटेशन में है, कैसे हमको पकड़ना है, और उसके किस फीचर्स को हमको हाईलाइट करना है, उससे हम एक या दो फीचर से बता सकते हैं कि बोन बिलोंग्स टू विच साइड। ठीक है ना? सो दिस बोन बिलोंग्स टू लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। क्लियर? Okay, so this is about the ilium, 2 surfaces, 3 borders and 3 angles. 3 angles are tuber-sacral. Medial angle is known as tuber-sacral. It is a rough angle and it never get higher than the sacrum. ये differentiating feature है। जब हम equine की पढ़ेंगे तो equine में जो medial angle है वो raised होता है। ठीक है? So in case of cattle it is not raised above the sacrum. Tubercox से दिख रहा है यहाँ पे, it is somewhat truncated and wide in the middle and narrow at its extremity. This is also a characteristic feature for the differentiation because in case of horse it is narrow at the middle. Okay? It is narrow at the middle and the acetabular angle which inserted over the acetabulum or take parts in the formation of the acetabular cavity. The ilium का जो पोर्शन है जो acetabulum के फॉर्मेशन में पार्ट करता है, that known as acetabular angle. ठीक है? जैसे जो अभी हम डिफरेंशिएटिंग फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे, इन दोनों बोन्स में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? इन दोनों बोन्स में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? ट्यूबरकॉक्स से देखते हैं तब भी वो मिडिल में हमको ट्रंकेटेड या मिडिल में नैरो दिखेगा। यहाँ पे नैरोइंग दिख रही है और यहाँ वाइड है एक्सट्रीमिटी पे। दिख रहा है एक्सट्रीमिटी पे वाइडनेस? यस मैम।
ठीक है, और वो चीज हमें यहाँ पे कैसा दिख रहा है एक्सट्रीमिटी पे, इस बोन में देखोगे तो कैसा दिख रहा है, काजू कतली शेप। यहाँ नैरो, मिडिल में वाइड, फिर यहाँ नैरो, कुछ जो काजू कतली बर्फी का शेप होता है उस टाइप का कुछ शेप जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द इलियम ऑफ कैटल। पहले हम तीनों बोन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन वी गो फॉर द डिफरेंशिएटिंग फीचर्स ऑफ इलियम, इशियम एंड प्यूबिस ऑफ हॉर्स, डॉग, फाउल एंड पिग। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. So this is all about the ilium. Now come to the ischium. This bone is ischium, and for description it has two surfaces, four borders and four angles. Surfaces: pelvic surface, ventral surface, because it faces ventrally, that's why it named as ventral surface. Pelvic surface, ventral surface, and when we go for the borders, it has medial border, lateral border, posterior border and anterior border। ठीक है, 4 बॉर्डर होंगे एंड 4 बॉर्डर हैं तो 4 एंगल होंगे, एंटीरियो मीडियल। ठीक है, दिस पोर्शन पे यहाँ पे एंटीरियो मीडियल, एंटीरियो लेटरल, this is the lateral border, and this one is medial border which take parts in the formation of the ischiatic symphysis। इसमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा, here you can see। ठीक है, 2 surfaces समझ में आ रही है, pelvic surface and ventral surface। ठीक, this one is lateral border, this one is medial border which take parts in the formation of ischiatic symphysis। ठीक, this one is anterior border and this one is posterior border। Here you can see the medial border, lateral border, anterior border and posterior border। क्लियर? ये प्लेट जैसी है बोन, लेकिन उस बोन का जो अपीयरेंस है, मतलब जो अरेंजमेंट है वो ऐसे है। ये ischiatic स्पाइन हो गया, ये लेसर ischiatic नॉच हो गई, ischiatic spine, lesser ischiatic notch, lesser ischiatic notch is formed by the lateral border of the ischium। ठीक, ये पीछे की तरफ का ऐसा हुआ, that is known as caudal border। ठीक, ये आगे की तरफ हुआ anterior border, और ये medial साइड में अपोजिट बोन ऐसे ही आकर के यहाँ पे ischial symphysis बनाएगी, that's why it named as medial border। क्लियर? बॉर्डर समझ में आए? इशियम के बॉर्डर समझ में आए? एक बार और कर समझो। देखो, 2 सरफेसेस समझ में आई इशियम की, यस मैम। pelvic surface which faces towards the pelvic cavity and the ventral surface। ठीक है, pelvic surface and the ventral surface and 4 borders are present। एक तो पीछे होगा caudal border, anterior border आगे की तरफ, lateral साइड में lateral border and medial साइड में medial border। ठीक है, ये पोर्शन जो है ये medial border का, यहाँ तक medial border है and this portion is lateral border, caudal border। this portion is caudal border and this portion is medial border। ये जो फिंगर है जो मेरी, वो medial border को डिपिक्ट कर रही है and medial border से पीछे की तरफ आएंगे तो this portion is depict the caudal border। ठीक है, और ये उसका lateral साइड, और lateral से आगे की तरफ गए तो anterior border। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक, अब 4 सरफेसेस हैं, 4 बॉर्डर्स हैं, 4 एंगल्स होंगे, 4 एंगल्स में एंटीरियो मीडियल, एंटीरियो लेटरल, ये प्यूबिस है, ये जो बोन दिख रही है ना, ये पतली सी ट्रायंगुलर शेप बोन, दिस वन इज प्यूबिस। ठीक है, ये एक साइड की बोन दिख रही है हमको, दिस वन इज प्यूबिस। तो इसका जो
प्यूबिस के साथ पार्ट आएगा दैट इज एंटीरियो मीडियल. लेटरल साइड में जो आएगा दैट पोर्शन टेक पार्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द एसिटाबुलम एंटीरियो लेटरल. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर पोस्टीरियो मीडियल एंड पोस्टीरियो लेटरल, पोस्टीरियो मीडियल एंड पोस्टीरियो लेटरल. ठीक है, दो आगे एंगल होंगे, दो पीछे एंगल होंगे. आगे के एंगल एंटीरियो मीडियल, एंटीरियो लेटरल, पोस्टीरियो मीडियल एंड पोस्टीरियो लेटरल. क्लियर? बोन ऐसे है, दिख रहा है बोर्ड पे? Yes, ma'am. ठीक है ना, बोन ऐसे है. तो हम इसके जब बॉर्डर बात करेंगे तो ये क्रेनियल हो गया, ये मीडियल हो गया, ये लेटरल साइड हो गई एंड ये कॉर्डल साइड हो गई. ठीक, क्लियर? बॉर्डर समझ में आ गया? क्रेनियल, मीडियल, कॉर्डल एंड लेटरल. ठीक है, Yes, ma'am. बॉर्डर समझ में आया ना? अब बॉर्डर के ही पास में एंगल होंगे. दो एंगल आगे, दो एंगल पीछे. ठीक है, तो आगे का एक क्रेनियो मीडियल हो जाएगा, दूसरा क्रेनियो लेटरल हो जाएगा. ठीक है, पीछे का एक मीडियल साइड में होगा तो कॉर्डो मीडियल हो जाएगा और एक कॉर्डो लेटरल हो जाएगा. क्लियर? समझ में आया? ठीक है ना, चार बॉर्डर, तो दो एंगल आगे होंगे, दो एंगल पीछे होंगे. दो एंगल आगे जो है, एक एंगल मीडियल साइड में होगा, एक एंगल लेटरल साइड में होगा, इसलिए एक क्रेनियो मीडियल, एक क्रेनियो लेटरल. दो एंगल पीछे होंगे तो कॉर्डो मीडियल एंड कॉर्डो लेटरल. क्लियर? क्लियर है? यस मैम, इसमें ट्यूबरस इसकी कहाँ पे ये ट्यूबरकल स्ट्रक्चर है? क्या ट्यूबरस्याई? हाँ, इसमें शो कर सकते हो आप डायग्राम में. ट्यूबरस्याई जब कॉर्डो लेटरल एंगल हम पढ़ेंगे, यहाँ पर एक रेज्ड टुवर्ड द वेंट्रल साइड हमें ट्यूबरकुलेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दैट नोन एज ट्यूबरस्याई. हियर यू कैन सी द ट्यूबरस्याई. ये दिख रहा है, ये पोर्शन, यस मैम. दिस पोर्शन इज ट्यूबरस्याई. ठीक है, क्लियर? इशियम का इतना पोर्शन समझ में आया कि सरफेसेस कैसे होंगी, कैसे बॉर्डर्स होंगे और कैसे एंगल होंगे. ठीक है, यहाँ एक बड़ा सा फोरामेन दिख रहा है, दैट फोरामेन इज नोन एज ऑब्टुरेटर फोरामेन. ठीक है, दिस नेम्ड एज ऑब्टुरेटर फोरामेन. ये एक बड़ी सी कैविटी दिख रही है, दैट नोन एज एसिटाबुलर कैविटी, और एक बड़ा सा फोरामेन दिख रहा है, दैट इज नोन एज ऑब्टुरेटर फोरामेन. ठीक है, तो अभी जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इशियम का डिस्क्रिप्शन, तो मैक्सिमम पोर्शन इज टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्टुरेटर फोरामेन. ठीक है, ऑब्टुरेटर फोरामेन इज सिचुएटेड इन बिटवीन द प्यूबिस एंड द इशियम. ऑब्टुरेटर फोरामेन के फॉर्मेशन में कहीं से कहीं तक इलियम का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता. ठीक, एंड एसिटाबुलर कैविटी इज फॉर्म बाय द पार्ट्स ऑफ ऑल थ्री बोन्स, ऑल थ्री स्ट्रक्चर. ठीक है, इलियम भी आएगा इसमें, इशियम भी आएगा, प्यूबिस भी आएगा जब हम ऑब्टुरेटर एसिटाबुलर कैविटी के बारे में बात करेंगे. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑब्टुरेटर फोरामेन, एट दैट टाइम ओनली इशियम एंड प्यूबिस आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्लियर? यस मैम. Okay, so that's all for today's class. In next class, we will continue with the structure of the ischium bone. Different मतलब जो कैसे क्रेनियोमीडियल एंगल कहाँ पार्ट कर रहा है, क्रेनियोलेटर कहाँ पर जाएगा, कॉर्डोमीडियल कहाँ जाएगा, कॉर्डोलेटरल कहाँ जाएगा, ये सब स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे. ठीक है, और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि
वेंट्रल सरफेस में क्या मिलेगा हमें, मीडियल सरफेस जो है वो पेल्विक कैविटी का फ्लोर कैसे बना रही है, इस्चियल सिम्फाइसिस कैसे बन रहा है. अबाउट दिस वी विल टॉक इन द नेक्स्ट क्लास अलॉन्ग विद द प्यूबिस एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ एस्टाबुलम एंड ऑब्टूरेटर फोरामेन. इतना हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड देन वी गो फॉर द कंपैरेटिव फीचर्स बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज एंड कंटिन्यू विद द फीमर. क्लियर? Yes, ma'am. ओके. तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कोई परेशानी अभी तक? अपने डाउट्स अभी क्लियर कर लेना, फिर जब मैडम पूछती हैं तब डाउट्स ज्यादा बड़े हो जाते हैं. ठीक है ना? सो ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स एट द टाइम ऑफ क्लास. That's all for today's class. Thank you.